Hi, good morning, my dear student. Today we are going to continue your class 12th history, chapter 3, Kings, Farmers and Town. My dear student, today we will start your next topic. Topic is land grants and new rural areas. Land grant and new rural area. My dear, this is very important and interesting topic. If you will read your book, you can easily understand about this. Dear, as you know that in my last video, I was discuss some important point like Smriti, Dharmasastra, and Agrahar. So Agrahar is directly connected with this topic. Land grant it means Agrahar. Agrahar से ही डायरेक्ट कनेक्टेड है ये टॉपिक. इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यदि आप बुक को देखें तो कहते हैं फ्रॉम द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा वी फाइंड grants of land being made, many of which were recorded in inscriptions. Some of these inscriptions were on stone, but most were on copper plates, which were probably given as a record of the transactions to those who received the land. My dear, land grants, the informations which we have with the help of inscriptions, and copper plate. इंस्क्रिप्शंस इट मीन्स अभिलेखों के द्वारा सूचना मिलती है. कॉपर प्लेट इट मीन्स ताम्र पत्रों पे लिखे गए जो राजकीय आदेश थे वो मिलते थे. यदि किसी भी ब्राह्मण को, यदि किसी भी व्यक्ति को यदि लैंड ग्रांट्स दिया जाता था तो उसके लिए एक ऑफिशियल रिकॉर्ड थे. वो ऑफिशियल रिकॉर्ड इन चीजों पे रखे जाते थे, इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से भी और कॉपर प्लेट्स की रिगार्डिंग. माय डियर, सो दैट्स व्हाई author want to inform you about the land grants that was given by the various king to the Brahmins, and it was mentioned on the different type of copper plates, inscriptions and others. So I hope you are getting कि लैंड ग्रांट्स का क्या मतलब था. जमीन को देना, पुणे के लिए देना. और मैंने पिछली क्लास में आपसे बात की थी और कहा था कि किस प्रकार प्रभावती गुप्ता ने टीचर चलना स्वामी को दंगुन ग्राम गांव में दान दिया और एक राजकीय आदेश पारित किया, एक रॉयल ऑर्डर भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि गांव के सभी लोग, प्रभावती गुप्ता ग्राम कुटुंबिन, गांव के गृहस्थ, कृषक, ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को यह आदेश देती हैं कि आपको ये ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए मैंने इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चल्ला स्वामी को दान दे दिया. अब आपको इनके आदेशों का पालन करना है. सोर्स 8, if you will read your book source 8 where this story given, according to this story, it is very important and interesting that the Prabhavati Gupta clearly take oath that today the date is mentioned according to the Hindu calendar, द्वादशी, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को. फॉर विच पर्पज? तो कहती है फॉर पुण्य की प्राप्ति के लिए. लिखा है, अगर आप बुक देखें तो कहता है कि ब्राइट फोर्थ नाइट of Kartika, we have in order to increase our religious merit, donate this village for religious merit. That is the very important things. Why? Here one more thing which is very important, that कि religious merit के लिए ये
गांव दान में दिए जाते थे ब्राह्मणों को। और इस तरह की लैंड ग्रांट की बात इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से, कॉपर प्लेट के माध्यम से आपको मिलती है। द रिकॉर्ड्स दैट हैव सर्वाइव्ड आर जनरली अबाउट द ग्रांट्स to religious institutions or to Brahmins. Most inscriptions were in Sanskrit. In some cases, and especially from the 7th century onwards, the part of the inscriptions was Sanskrit, while the rest of the inscriptions was Sanskrit, while the rest was in the local language, which such as Tamil and Telugu. Let us look at the such inscriptions more closely. Dear student, author want to inform you that the lot of inscriptions give us about the information of the agrahar and land grants. The inscriptional evidence which is clearly explained that this type of land grants for the religious merit, that is the very important things. For religious merits, they donated the village, that village called land grants. Here one question arises, that land grants, no doubt to say that it is for the religious merit. King wanted to obtain the religious merit, so that's why they donated the huge amount of the land for the religious institutions, scholar and the Brahmins also. So I hope you are getting what I am saying, my dear. This is the very clear. Okay. Second paragraph, if you read the Prabhavati Gupta. Okay. Next point is that the Prabhavati Gupta. Prabhavati Gupta. There is no need to explain about Prabhavati Gupta. Why? Because I taught you about the history of Gupta dynasty, and also I discussed there the Prabhavati Gupta and Chandragupta Dwitiya Vikramaditya. But again I am going to tell you about the Prabhavati Gupta. She was daughter of Chandragupta Dwitiya Vikramaditya. Gupta dynasty's ruler. It is the very prominent ruler. It was very prominent ruler. Prabhavati Gupta got married in Vakata dynasties, and in the very early age, after his marriage, his husband was died. As a trustee, as a guardian, Prabhavati Gupta took whole the administrative authority. He taken all the power. उसने सभी अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया और फिर उसने राज्य को अपने तरीके से करने लगी। तो मेरे कहने का सेंस इतना ही था कि अब प्रभावती गुप्ता जो कि अपने पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी वाकाटक साम्राज्य पे, वाकाटक एम्पायर पे, उसने कुछ लैंड ग्रांट्स दिए। ये प्रभावती गुप्ता ने कुछ जमीनें दान दी। बट हियर वन क्वेश्चन राइज दैट अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, according to Dharma Shastra, and Dharma Smriti, women's had no property right. Okay, it is very clear. But here we have seen the very contradictory part. हमने यहाँ पे एक बहुत ही कंट्रडिक्शन देखा। कंट्रडिक्शन क्या है? कंट्रडिक्शंस में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कंट्रडिक्शंस में कहता है कि विमेन्स को संपत्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रभावती गुप्ता लैंड ग्रांट्स जो दे रही हैं, जैसा कि हमने सोर्स 8 में पढ़ा, सोर्स 8 में दंगुन गांव को चन्ना स्वामी को प्रभावती गुप्ता दान दे रही हैं। तो ये दोनों बातें एक दूसरे को कंट्रडिक्ट कर रही थी। वी कैन से दैट इन द एक्सेप्शनल केसेस द वीमेन आल्सो असेस द प्रॉपर्टी
But according to Dharmashastra and Dharma Smriti, women's only enjoy or women's only what use the Stridhan and the mother's property. I mean to say that कि जो प्रॉपर्टी महिलाओं के पास आती वो किससे आएगी? अगर आप बुक देखें, let us come and try to read your book. Prabhavati Gupta was the daughter of one of the most important ruler in the early Indian history, Chandragupta II, 375 to 415 CE. She was married into another important ruling family, that of the Vakatak, who were powerful in the Deccan. According to Sanskrit legal text, women were not supposed to have the independent access resource such as land. However, the inscriptions indicate that the Prabhavati Gupta had access to land, which say the granted this may have been because she was queen. One of the few known from the early Indian history, the Prabhavati Gupta, she was queen and she what? She donated the land. And her situation was therefore the exceptional. It is also possible that the provisions of the legal text were not uniformly implemented on them. तो कहने का सेंस मेरा सिर्फ इतना ही है कि प्राचीन काल में जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी, उनमें महिलाओं के ऊपर महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभावती गुप्ता ने संपत्ति का दान दिया, पैसे दिए। अभी अगर उन चीजों को जोड़े तो मैं अग्रहार से उसको जोड़ सकता हूं, अग्रहार के उन पॉइंट्स को जोड़िए। उसमें अग्रहार में मैंने आपसे कहा था कि किस प्रकार प्रभावती गुप्ता ने दंगुन ग्राम दान में दिया। इवन वीमेन्स को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थी, प्रॉपर्टी राइट्स को एंजॉय करने का अधिकार नहीं था। कहते थे inscriptions also gives us an idea about the rural population. This includes Brahmins and the peasants as well as other who are expected to representative, and according to the inscriptions they would have to obey the new lord of the village and perhaps pay him all these dues. Land grants such as the one have been found in the several parts of the country. There were the regional variation in the size of the land donated. The ranging land and the right given to the donees. My dear, तो एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कि लैंड डोनेशन भारत के हर पार्टों में थी, कई साइज में छोटा, कई साइज में बड़ा, लेकिन दिया तो हर जगह गया था और इसके एविडेंस हमें इंस्क्रिप्शन से मिलते रहते हैं। हमें इंस्क्रिप्शन से इस बात का उल्लेख क्लियरली देते हैं। दैट्स व्हाई हियर क्लियरली एक्सप्लेन दैट कि द इंस्क्रिप्शंस आल्सो गिव अस एन आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन and the rural populations. These included Brahmins and peasants. My dear, according to inscriptions, they would have to obey the new lord of the village and perhaps pay him all these dues. Land grants such as the one have been found in several parts of the country. There were the regional variations of the size of the land donated, ranging from small plots of the vast stretching uncultivated land and the right given to donees. The recipients of the grants, the impact of land grants is subject of heated debate among historians. Some feel that land grants were part of the strategy adopted by ruling lineage of the extended agriculture to new area. Others suggested that land grants were indicative of the weakening political power as a king was losing control over the Samantas. They tried to win the allies by making grants of land. They also feel the king tried to project himself as a superman, as we saw in the previous section,
because they were losing control. They wanted to present at least the face of power. My dear, here one question arises that historian they discuss and debate about that matter, that why the king donated the huge amount of the land grants. What was reason behind that? Some historians believe that some king, for the religious merits, they donates these grants, and they've also given the points that some part that is uncultivated land, it is very important that that land was cultivated by someone. तो लैंड वो जो छूटा हुआ था, जो अनकल्टिवेटेड था, राजा समझते थे कि हम कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि राजाओं ने ये लैंड ग्रांट्स इसलिए दिया क्योंकि उनके राज्य में ऐसी बहुत सारी जमीनें थीं जो कल्टिवेटेड नहीं थी, जहाँ पे खेती का काम नहीं होता था। तो लैंड ग्रांट ऐसी जमीनों को दे करके उसे फर्टाइल, उसे कल्टिवेशन के योग्य बनाई जाती थी। ब्राह्मण्स को जमीन दान में दी जाती थी, ब्राह्मण्स उस जमीन को अपने लोगों के द्वारा कल्टिवेटेड लैंड के रूप में कन्वर्ट करता था और फिर धीरे धीरे उस जमीन को उपजाऊ बना लिया जाता था और बाद में उससे राज्य को टैक्स भी मिलने लगता रहा होगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे का मेन रीजन है कि राजा जो अब उसकी स्थिति कमजोर होती जा रही थी, अब वो अपनी जमीनों को अपने सामंतों में बांट रहा था। उसको अपनी जमीन को अपने सामंतों में बांटने के पीछे दो पर्पस था। एक तो ये कि राजा अपने को सुपरमैन या सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में दिखा रहा था कि इन सारी जमीनों का दान मैं करके अपने छोटे छोटे सामंतों को अपने अंडर में काम कर रहा हूं, अपने लैंडेज को बढ़ा रहा हूं, अपने पावर को बढ़ा रहा हूं। लेकिन इनडायरेक्टली एक क्लियर मैसेज है इतिहास में कि ऐसे राजाओं को इतिहास में कमजोर शासकों के रूप में देखा गया। तो दो चीजें वेरी क्लियर है। दैट्स व्हाई ऑथर क्लियरली इन्फॉर्म अबाउट दैट व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड द लैंड ग्रांट्स। इतिहासकार इन चीजों को साफ साफ कहता है कि व्हाट द historian feel that the land grants were part of the strategy adopted by ruling lineage to extend agriculture to new area. Others suggest that land grants were the indicative of the weakening political power. As kings were losing control over the Samantas, they tried to win allies by making grants to land. They also feel that they also feel that king tried to project themselves Superman because they were losing control. They wanted to present at least a face of power. My dear, land grants provide some insight into the relationship between the cultivators and the state. However, there were people who were often beyond reach of official samantas, pastoralists, fish folk, and hunter-gatherers, mobile or semi-sedentary artisans, and shifting cultivators. Generally, such as a group did not keep detailed record of their lives of the transactions created. This is the very important things. Direct or indirect way, author inform you about that the very clear history about that the common people who lived in particular regions, that land, उस जमीन में उस जगह पर रहने वाले लोगों के बारे में प्रॉपर सूचनाएं देता है। अगर आप इन चीजों को समझिए आसान भाषा में, सिंपल शब्दों में, तो क्लियर कहता है। पहले लैंड ग्रांट्स के बारे में समझिए। कहता है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी से ही हमें लैंड ग्रांट्स के एग्जांपल्स, लैंड ग्रांट्स के एविडेंस मिलने लगते हैं। इसी से हमें लैंड ग्रांट्स के पर्पज को समझने में आसानी मिलती है। लैंड ग्रांट्स के बारे में कुषाणों और सातवाहनों दोनों के संबंध में है। सबसे पहले
अग्रहार ग्राम दान देने का कॉन्सेप्ट सातवाहनों में दिखाई देता है। फिर बाद में ये धीरे धीरे बाद के राजाओं ने बड़े अधिक मात्रा में इसको अडॉप्ट किया। सबसे पहले आप याद रखिएगा, लैंड ग्रांट्स का काम सबसे पहले सातवाहनों ने किया। इसीलिए फर्स्ट सेंचुरी एडी के इंस्क्रिप्शंस में हमें लैंड ग्रांट्स की सूचनाएं मिलने लगती हैं। इनमें से कुछ जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो पत्थर पर लिखे गए थे, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जो ताम्रपत्रों पे, कॉपर प्लेट्स पे लिखे गए, खुदे हुए मिले, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण के रूप में दिया जाता था जिन्हें जमीन दान में दी जाती थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू कि ये जमीन देना और प्रमाण के रूप में इंस्क्रिप्शंस पे उनके नाम को मेंशन कराना या कॉपर प्लेट पे उनको ये कह के देना कि आज से इस जमीन का अधिकार आपको है, ये दोनों चीजें की जाती थी। भूमिदान के जो प्रमाण मिले वे साधारणतः तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दान दिए गए थे। अधिकांश जो इंस्क्रिप्शंस मिले वो संस्कृत में थे, लेकिन 7th सेंचुरी के बाद, 7th सेंचुरी एडी के बाद हमें ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस और कॉपर प्लेट्स मिले जो फोक लैंग्वेजेस में भी थे, जैसे तेलुगु में, तमिल में, जैसे हमें अन्य भाषाओं में भी, स्थानीय भाषाओं में भी अभिलेख लिखे मिले जिसमें अग्रहार को उल्लेख किया गया था। चोलों में उसे चातुर्वेदी मंगलम कहा गया, तो चातुर्वेदी मंगलम अग्रहार सेम है। इसीलिए मैंने कहा कि 7वीं सदी के बाद के अभिलेखों में कुछ अंश संस्कृत में है और कुछ तमिल और तेलुगु जैसे स्थानीय भाषाओं में भी हैं, जिसमें हमें इस तरह की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमने सेकेंड पार्ट में आपको प्रभावती गुप्ता के बारे में बताया। प्रभावती गुप्ता जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी। प्रभावती गुप्ता जिन्होंने धर्मशास्त्र और धर्म स्मृतियों में दिए गए नियमों के खिलाफ जाकर के एक रानी के रूप में संपत्ति को अपने अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया। धर्मशास्त्र और धर्म स्मृतियों के अनुसार किसी भी स्त्री को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, लेकिन यहां पे प्रभावती गुप्ता न केवल प्रॉपर्टी को एंजॉय करती हैं बल्कि वो दान भी देती हैं, डोनेशन भी देती हैं। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात है कि प्रभावती गुप्ता एक रानी थी। ये एक एक्सेप्शनल केसेस है जो धर्मशास्त्र और धर्म स्मृतियों के कानूनों को क्या करती है, वायलेट करती है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि जो संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र से पता चलता है कि प्रभावती गुप्ता भूमि की स्वामी थी और उसने भूमिदान दिया था, लैंड ग्रांट्स किया था। इसका कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक स्वतंत्र रानी थी। आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में से वो एक थी जिन्होंने लैंड ग्रांट किया था, जमीन दान में दी थी, इसलिए उनका उदाहरण एक बिरला ही है। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। यह भी मान्यता हो सकती है कि धर्मशास्त्र के जो नियम है वो सभी जगह पे प्रॉपरली क्या हो, इम्प्लीमेंट न होते हो। अब यहाँ पे लैंड ग्रांट के पीछे क्या कारण रहे होंगे, इतिहासकारों में इसमें लंबी चर्चाएं चली। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चला। इनके अभिलेखों में ब्राह्मण, किसान, अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों के कई प्रकार से वस्तुएं दान देते थे या टैक्स के रूप में देते थे या ड्यूज देते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। गांव जिसको दिया गया उसकी आज्ञाओं का इनको पालन करना पड़ता था। इसलिए इनडायरेक्ट वे से इन लोगों के नाम भी इंस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं, जिससे हमें लोकल सोसाइटी के बारे में मालूम चल पाती है, कॉमन पीपल के बारे में भी कुछ सूचनाएं मिल पाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है अभिलेखों में इन गांवों के जो नए प्रधान थे उनका नाम मेंशन है। और इस प्रकार का भूमिदान, इस प्रकार का लैंड ग्रांट्स क्यों दिया जाता था, और ये लैंड ग्रांट्स क्या भारत के सभी पार्ट में थे? तो अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी कि लैंड ग्रांट्स भारत के सभी पार्ट में थे। कहीं पे उनका साइज छोटा था, कहीं पे उनका साइज बड़ा था। मैंने आपसे ये भी कहा कि जो इंस्क्रिप्शंस थे कुछ संस्कृत में हैं, कुछ संस्कृत के साथ साथ जो स्थानीय भाषा के
में भी इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए, जैसे तमिल तेलुगु में भी। मैंने आपको कुछ नाम बताए, जैसे अग्रहार नाम मैंने कहा, अग्रहार के साथ मैंने नाम लिया चातुर्वेदी मंगलम, आपके बुक में नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि तमिल में उनको चातुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमिदान देने वालों, भूमिदान करने वाले के अधिकारों से भी क्षेत्रीय परिवर्तन के बारे में हमें कुछ सूचनाएं मिल पाती हैं। जैसे इस प्रकार का भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए। क्षेत्र में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है, कहीं कहीं ये छोटे हैं, कहीं कहीं बड़े हैं। साथ ही भूमिदान में दान करने वाले लोगों के अधिकारों में भी कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देता है। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक बहुत ही लंबा डिस्कस और डिबेट का कारण बना इतिहासकारों में। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसके पीछे का क्या रीजन रहा होगा, तो कुछ का मानना है कि भूमिदान वंश द्वारा कृषि के नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए था। मतलब ऐसे क्षेत्र जो जिसमें खेती नहीं की जाती थी, उन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की जमीन दान में दी गई होगी। लेकिन साथ ही साथ जो भूमिदान, लैंड ग्रांट की बात है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भूमिदान जब केंद्र की कमजोर सत्ता हुई होगी तो कमजोर राजनीतिक या भूमिदान दुर्बल राजनीतिक प्रमुख के रूप में, मतलब राजा के रूप में भी ये इंडिकेट करता है कि राजा कमजोर हो रहा था, राजा एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से कमजोर हो रहा था, उसने अपनी जमीनों को छोटे छोटे सामंतों में बांट दिया। तो राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने का ही संकेत करता है। तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थकों को जुटाने का प्रारंभ किया और उनका यह मानना था कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर पर दिखाने के लिए बड़ी बड़ी जमीनों को अपने लोगों में दान कर रहा था। कहने का संकेत इतना ही है कि अब राजा छोटी छोटी जमीनों को प्राप्त करने के लिए बड़े लोगों को दान दे रहा था, सामंतों को बढ़ा रहा था। इस रूप में राजा अपने को पावरफुल भी दिखा देता और राजा के पास बहुत सारे सामंत थे, जिससे सामंतों की शक्ति उनको मिल जाती। लेकिन साथ ही साथ इनडायरेक्ट वे से हमें यह भी सूचना मिलती है कि राजा का जो प्रशासन था, जो नियंत्रण था, जो कंट्रोलिंग थी, वो क्या हो रही थी, कमजोर हो रही थी। ये इस बात का भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। लैंड ग्रांट्स के प्रचलन में राज्य तथा किसानों के बीच के संबंधों की एक महत्वपूर्ण झांकी दिखाई देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं होता था, जो उस क्षेत्र में रहते थे। जैसे ये कौन लोग थे? ऐसे लोगों में पशुपालक, पास्टोरलिस्ट, हंटर एंड गैदरर्स, जो मछुआरे थे। इसके अलावा जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स टाइप्स लोग। सामान्यतः ऐसे लोग जो अपने जीवन को आदान प्रदान का विचरण करते थे, मोबिलाइज सोसाइटी में रहते थे, इस प्रकार के लोग भी इस तरह की जमीनों में रहा करते थे। तो यहाँ पे एक नई तरीके की पूरे समाज अग्रहार से कनेक्टेड होता था। अग्रहार ग्राम को आप इन नई तरीके की व्यवस्था से जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो हमने इस लैंड ग्रांट में आज कुछ चीज़ों को पढ़ा, समराइज करते हैं इन चीज़ों को कम्प्लीटली। पहले हमने कहा आपसे कि लैंड ग्रांट्स क्या था। तो मैंने लैंड ग्रांट्स बताया कि लैंड ग्रांट्स एक राजा के द्वारा दी गई जमीन के वो टुकड़े थे जिन्हें राजा अपने किसी प्रबुद्ध वर्ग को देता था, एक किसी इंस्टीट्यूशन को दान देता था। अग्रहार ग्राम के रूप में हमें प्रभावती गुप्ता के पुनः ताम्रपत्र से इसकी सूचना क्लियरली मिलती है। अब इसकी प्राचीनता क्या है, कितनी पुरानी है? तो अग्रहार ग्राम फर्स्ट सेंचुरी एडी से ही हमें दिखाई देने लगते हैं। सातवाहनों ने इसको शुरू किया, बाद में कुषाणों के समय, फिर गुप्तों में भी हमें दिखाई देता है। अग्रहार ग्राम की कुछ अपनी लिमिटेशंस थी, कुछ सोच थी। यहाँ पे एक बात है और, अग्रहार ग्राम राजाओं द्वारा दी जाती थी, लेकिन प्रभावती गुप्ता का एक कॉन्सेप्ट यहाँ उल्लेख किया कि प्रभावती गुप्ता जो थी वो विमेंस थी। धर्मशास्त्र और धर्म स्मृतियों के अनुसार स्त्रियों को सिर्फ स्त्री धन पे ही अधिकार था, लेकिन संपत्ति, भूमि संपत्ति के रूप में, लैंड को प्रॉपर्टी के रूप में वो यूज नहीं कर सकती थी, ना डोनेट कर सकती थी। लेकिन यहाँ प्रभावती गुप्ता ने डोनेट किया। इसके पीछे का रीजन इतिहासकार कहते हैं कि वो रानी थी, एक्सेप्शनल केसेस है में इसको हम ले सकते हैं, वो लैंड ग्रांट कर सकती हैं। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि धर्मशास्त्र और धर्मस्मृति के नियम सारे जगह लगातार इक्विवेलेंट नहीं लागू हुए होंगे, ये बात भी इंडिकेट हो सकती है।
अब कहता है धर्म, ये अग्रहार ग्राम देने के पीछे का पर्पज क्या था? तो कहता है अग्रहार ग्राम दान देने के पीछे का जो पर्पज है, वो पर्पज मेन यही है कि इससे रिलीजियस मेरिट प्राप्त की जाए। लेकिन इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि सिर्फ रिलीजियस मेरिट के लिए ये बात नहीं होती थी, बल्कि राजा इसके लिए, या तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी उनको कल्टिवेशन के अनुसार, मतलब खेती के योग्य बनाने के लिए जमीनें दान में दी गई होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये जमीनें राजा की कमजोर स्थिति को दिखा रही थी और राजा अपनी जमीनों को अपने लोगों में बांट के अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा था, सामंतों को बना रहा था। तो इस तरह से हमें राजा की कमजोर स्थिति के बारे में भी सूचना मिलती है। अब हमने अग्रहार ग्राम के पीछे के पर्पज, अग्रहार ग्राम के जो नियम रूल्स हैं और अग्रहार ग्राम की जो इतिहास है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अग्रहार ग्राम के बारे में जो सूचना मिलती है, सोर्स जो है जानने के लिए, वो कॉपर प्लेट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत सारे टेक्स्ट में भी इनका उल्लेख किया गया है। कहा गया अग्रहार पूरे भारत में है, केवल एक क्षेत्र में सीमित नहीं था, ये पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में हमें दिखाई देता है। हाँ, उनमें कुछ विभिन्नताएं दिखती हैं, जैसे जो लैंड है, लैंड ग्रांट जो की जा रही है, उनकी साइज थोड़ी छोटी थोड़ी बड़ी, या उनके जो जो अधिकार है वो अधिकार कहीं ज़्यादा दिए गए, कहीं कम दिए गए। तो ये अग्रहार है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाउन्स एंड ट्रेड। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।